Hey there! Welcome to season 2 of Raise the Brow with Nishka and Malaika. If you've been with us through season 1 and are still here, then hey, we love you. And if you're new here, then welcome, welcome, welcome. This season, we have lined up stories of some kick-ass Indians from across the globe who are reshaping our Indian society by being who they are. Because, log kya bolenge. This season, we are also bringing in some experts on relationships, love, sex, life, and everything that happens in between. So, we hope you enjoy this episode as much as we have enjoyed putting it together. Hi Geeta, good morning. हमारे podcast Raise the Brow में welcome, welcome, welcome. We've been waiting to have you on the podcast. Thank you very much. Thank you, Nishka. And Malaika is also there. Good morning, Malaika and Nishka. Good morning. Thank you so much. You're so polite. Geeta ji, is this your first podcast? Yes. It is? This Oh, is how my first. exciting. Yes. So, just going into it, ये काफी relaxed है. It's more a conversation between all of us. Nishka और मैं बात कर रहे थे कि the whole point is कि to get your story out, but it's also just for us to have fun. So that's the thing. You can say anything you want. आपको जो बोलना बोल सकते हो, आपको नहीं बोलना है वो भी चलेगा. It's just a conversation. Wow. Thank you so much, Malaika. So, for our listeners and viewers, Geeta is the most inspiring person. So, among the many things that she does, the most amazing thing is that she is a lingerie model at the age of 52. She has been a runners-up in a beauty pageant. She also has her own NGO. And most importantly, how we found out was that she's also petitioning against Zivame, which is one of India's leading lingerie brands, to have more mature models in their campaigns and to stop this nonsense, which is ageism. So, big round of applause for petitioning Zivame. Very big deal. Very proud of you because it's about time कि representation होना चाहिए सबके लिए. Thank you. Thank you very much. तो बिल्कुल. गीता, let's go थोड़ा सा flashback करते हैं. So, when did this dream all start? कि, I want to become a model. When did it happen? How old were you? What was happening? Just tell us. क्या हो रहा था? जैसे हर बच्चे को होता है ना, मतलब सपने चेंज होते रहते हैं. कभी टीचर बनना है, कभी ये बनना है, कभी वो बनना है. तो मेरा भी ऐसा ही था. पर 14-50 की एज में जो टीन एज ईयर्स होते हैं, उसमें मेरा ये सपना था कि मैं बड़ी होके मॉडल बनूंगी. क्योंकि हम लोग जब मूवीज देखने जाते थे थिएटर में, तो उसमें मूवीज से पहले ना एडवर्टाइजमेंट्स आती थी. वो मॉडल्स ना बड़े प्यार से, मतलब इतना अच्छा लगता था, बहुत फैसिनेटिंग लगता था मुझे. टूथपेस्ट दिखा रही है, कभी शैम्पू दिखा रही है, तो वो बहुत फैसिनेट करती थी. और मूवीज से ज्यादा मुझे वो एडवर्टाइजमेंट ज्यादा अच्छी लगती थी. तो तब से वो सपना ना अंदर घर कर गया कि नहीं, बड़ी होके मैं भी मॉडल बनूंगी, अपने आप को बड़ी स्क्रीन पे दिखूंगी. तो यस यार, टीनेज ईयर्स में मेरा ये सपना था कि बड़ी होके मुझे मॉडल बनना है. जब आप बातें कर रहे थे, it just reminded me when I was 7 years old, my dream was to become Miss Universe. I just remembered that. Of course, I mean, काफी छोटी रह गई. I'm like 4'11", but still a dream. And here I am living a different dream. तो गीता, आप आज 52 years की हैं. So 37 years later, how does it feel कि you can call yourself a model today and a lingerie model? How does it feel? बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने सपने को इतने साल तक, मैं तो काउंट भी नहीं करती हूँ, पर इतने सालों तक, अभी आपने बोला तो पता चला कि इतने साल हो गए, अपने अंदर उसको लाइव रखा है मैंने. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली वो सपना मैंने पूरा किया. अच्छा लग रहा है. आई फील वेरी गुड. It's amazing क्योंकि वो होता है ना, हमें बात कर रहे थे पहले कि when you reach certain ages in life, forget 50, sometimes you're 20, 25, 30, 35, 40 and you're like, you know what, जो करना था पहले करना था, अभी it's too late. And you are this living example and an inspiration for especially anybody and everybody. It's not even an age thing.
somebody can be Yes. 80 years old and be like, you know what, मुझे ये करना था, मैंने किया क्यों नहीं, वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए कभी। वो मेरा एक फ्रेंड है, वो हमेशा बोलता है अरे यार मैं तो अभी 40s में चला गया, तो मैं बोलती हूँ 40s में ही है, ऐसा सोचो ना। मैं तो बोलती हूँ बस अभी 50s ही है मेरा, अभी तो बहुत टाइम है। मुझे तो हमेशा यही लगता है, अभी तो टाइम ही टाइम है। अभी मतलब मुझे, मेरे लिए ये टाइम आया है कि मैं अभी पूरा फोकस कर सकती हूँ अपने सपने को, क्योंकि मैं बाकी जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो मैंने पूरी कर दी है। अभी मैं फोकस करती हूँ अपने सपने के लिए, और अभी तो बहुत टाइम है। दिस इज द जस्ट द बिगिनिंग। I love that. I think this is what it should be for everybody who is right now in this phase कि you know हमारे dreams कब पूरे होंगे. Just be like you actually have more time than you know. Wait till you hit 50. That's when it begins. यस, आप आपके पास टाइम ही टाइम होता है, आपके लिए, खुद के लिए वो टाइम होता है फिर। Yeah. तो आपके क्या experiences थे when you were shopping for lingerie or even shopping for sports bras that made you decide कि you know what, मुझे lingerie model बनना चाहिए because I am going to be that example. हाँ, तो मैं काफी फिटनेस कॉन्शियस हूँ, तो एक्टिव वेयर मैं खरीदती रहती हूँ, और लॉन्जरी का भी मतलब है, अच्छा लगता है फैंसी लॉन्जरी पहनना। तो एक बार मैं ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी, लॉकडाउन था तो हाँ शॉपिंग ही करते थे लोग बैठ के कि चलो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो मैं देख रही थी, मुझे जरूरत थी स्पोर्ट्स ब्रा, तो मैंने देखा ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए, हाँ अच्छा कलेक्शन जिवा में सबसे पहले देखा, क्योंकि इंडिया के लिए वो सबसे बड़ी ऑनलाइन लॉन्जरी शॉपिंग साइट है। तो है, अच्छा कलेक्शन है, सब कुछ मैंने देखा। बट मैंने ये नोटिस किया कि जो भी शोकेस कर रही है, जो भी प्रोडक्ट्स, चाहे वो नाइट वेयर हो, चाहे स्पोर्ट्स वेयर हो, चाहे लॉन्जरी हो, मेटर्निटी वेयर हो, जो भी हो, मेटर्निटी वेयर खैर उसमें यंग होगी, बट सब यंग मॉडल्स ही थी, सब में प्लस साइज मॉडल थी, बट कोई मैच्योर मॉडल नहीं थी। मतलब जैसे कि मैच्योर मॉडल आप एक सर्टेन एज पहुंच गए तो उसके बाद आप फिट नहीं रहते हो, आप जैसे कोई फिटनेस एक्टिविटी करते ही नहीं हो, या आप फिर फैंसी लॉन्जरी, आपकी वो डिजायर ही नहीं रहती, मतलब यू आर जस्ट डेड, मतलब आप सर्टेन एज में पहुंच गए। तो एक ऐसा मैसेज अनकॉन्शियसली वो लोग दे रहे, ऐसा मुझे लगा। तो उसके बाद मैंने दूसरी साइड देखी, चलो इसमें नहीं है तो दूसरे में देखती हूँ, पर हर साइट में वही था, कहीं पे मैच्योर मॉडल्स नहीं थी, प्लस साइज मॉडल थी, मैच्योर मॉडल कहीं नहीं थी। उसके बाद इंटरनेशनल ब्रांड देखी मैंने, उसमें भी साइट में जाके देखा, कुछ कुछ जगह मुझे दिखी मैच्योर मॉडल्स, बट बहुत कम। तो और फिर मेरे एक्सपीरियंस भी ऐसे रहते, जैसे ही मतलब मॉडलिंग प्रोफाइल मैंने शुरू किया था और लोग मुझे अप्रोच कर रहे थे, तो वहां से भी यही रिस्पॉन्स था कि 40 या 45 के बाद वो लोग एक लेने में उनको हिचक रहती थी अपने प्रोडक्ट्स के लिए, मॉडल्स के लेने में, मॉडल्स को लेने में, चाहे कोई भी हो, साड़ी भी हो या कोई भी हो, लॉन्जरी तो दूर की बात है। तो एक ऐसा एक्सपीरियंस था मेरा। ऊपर से मैंने ऑनलाइन में देखा कि रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है मैच्योर मॉडल का, तो इसीलिए ब्रांड जो भी स्टार्टअप या जो भी, वो उनको एक हेजिटेशन है कि हम लेंगे तो चलेगा या नहीं चलेगा। पर ये जो बड़ी बड़ी ब्रांड है वो कुछ कर सकती है, वो शुरू कर सकते हैं। अगर उन्होंने दिखाना शुरू किया तो ये स्टार्टअप से या छोटी ब्रांड से, उन सबके लिए क्या एक बहुत बड़ा वो एग्जाम्पल बन जाएगा। और एक मेरा ये एक्सपीरियंस रहा शॉपिंग का, ऊपर से वो मॉडलिंग का एक्सपीरियंस, और उसी दौरान मैंने वो न्यूज आर्टिकल पढ़ा, हेलेना सार्जेल, वो ब्राजील की मॉडल है, 79 ईयर्स की, और मैं मतलब वो मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। और मैंने देखा 79 ईयर्स में शी इज फ्लॉन्टिंग लाइक, मतलब जैसे वो रैंप वॉक करते हैं लॉन्जरी में और लोग उसके लिए क्लैप करते हैं। इंडिया में क्यों नहीं ऐसा हो सकता? मतलब फैंसी लॉन्जरी ऐसा तो नहीं है कि आप चलो आज मैं 50 की हो गई और कल से मैं फैंसी लॉन्जरी पहनना बंद कर दूंगी, ऐसा तो नहीं है। इनर वेयर तो हम हमेशा पहनते हैं, फैंसी भी पहनते हैं, ऐसा नहीं होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो बस मेरा यही था कि क्यों आप वो नहीं दिखाते हो जो रियल लाइफ में भी होता है। हम लोग नहीं पहनना बंद करते आफ्टर सर्टेन एज, इनर वेयर पहनना तो बंद नहीं करते हैं, फैंसी लॉन्जरी भी पहनना बंद नहीं करते, नाइट वेयर भी पहनना बंद नहीं करते, और बहुत सारे लोग आजकल तो वर्कआउट करते हैं, तो एक्टिव वेयर भी हमको चाहिए। तो जो हो रहा है वो नहीं दिखा रहे, और अनकॉन्शियसली ये मैसेज दे रहे हैं कि आफ्टर सर्टेन एज यू आर नॉट फिट टू वेयर फैंसी लॉन्जरी, टू वेयर नाइट वेयर और एक्टिव और एनीथिंग। तो इसके लिए मैंने एक पिटीशन शुरू किया, और जीवा मेरे को मैंने इसलिए बोला कि सबसे बड़ी वो ऑनलाइन
लॉन्जरी की साइट है, और अगर उन्होंने अपनी साइट में, जिसमें इंटीमेट वेयर आपको बोलते हो, उसमें अगर मैच्योर मॉडल्स को दिखाया, तो बाकी सब ब्रांड जिसमें साड़ी की या वेस्टर्न ड्रेस या जो भी है, किसी में नहीं दिखाते मैच्योर मॉडल्स को, हार्डली वी कैन सी मैच्योर मॉडल। वो सबके लिए फिर दिखाना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने अपना कैंपेन शुरू किया, एज नॉट केज, और change.org के प्लेटफॉर्म से मैंने शुरू किया। दैट ये रीजन कैंपेन था इज मेरा। ब्रिलियंट यस, क्योंकि बहुत सपोर्ट मिला है। तो आपका रिस्पांस कैसे हुआ है कैंपेन में फ्रॉम सोसाइटी एंड लोगों से एंड आल्सो फ्रॉम द ब्रांड? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। अभी 3 महीने ही हुए हैं और मुझे करीब 6000 लोगों ने साइन किए है उसमें, और उसमें साइन करने वालों में है एस्टन एप्पलवाइट, न्यूयॉर्क में टेड स्पीकर है और ऑथर है। उन्होंने लिखा है एजिज्म के ऊपर, उनकी एक बुक है दिस चेयर रॉक्स। तो उन्होंने मेरी पिटिशन पे साइन किया है, वो मुझे फॉलो कर रही है, मैं उनको फॉलो कर रही हूँ। उसके अलावा जो ब्राजील की जो मैं मॉडल आपको बोल रही हूँ, हेलेना सारजेल, जो मेरी इंस्पिरेशन है, उन्होंने मेरी पिटिशन को सपोर्ट किया है। उसके अलावा इंटरनेशनल ग्रुप जो है, जो दे वर्क फॉर आई मीन अगेंस्ट एजिज्म, उन लोगों ने मेरी पिटिशन को सपोर्ट किया है। उसके अलावा आदिल हुसैन, इंडियन एक्टर है, आपने सुना होगा नाम, वो हमेशा मेरी ट्वीट को लाइक करते हैं। तो ऐसे सपोर्ट तो काफी मिला है, और बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है। मुझे पर्सनल डीएम्स करते हैं कि आपका कैंपेन बहुत अच्छा है, चलो किसी ने तो आवाज उठाई। और जो बाउंड्री के बाहर है, जो इंटरनेशनल कंट्रीज से, तो वेस्टर्न कंट्रीज से, वो लोग भी डीएम करते हैं। उन्होंने बोला चलो इंडिया में तो शुरू हो गया, अभी तक तो हमने सुना था कि वेस्टर्न कंट्रीज में ये सब चलता है। जो इंडियन जो बाहर रहते हैं, उन लोग मैसेज करके बोलते कि चलो इंडिया में भी तो ये शुरू हुआ, ये तो नीड ऑफ द आवर है। तो काफी रिस्पांस मिला है, काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, सपोर्ट मिला है। Which is the biggest sign ना कि लोग वेट कर रहे थे इसका, कि लोग somebody वेट कर had रहे to हैं, start to वो वॉइस की जरूरत है। एंड द फैक्ट जरूरत कि है। लोग सपोर्ट कर रहे हैं, that everybody is talking about it, it shows that we are ready for change. So और इधर मैं एक बोलना चाहूंगी, अभी ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे में मेरी स्टोरी आई थी, हाँ तो मैं वो कमेंट्स पढ़ रही थी, काफी पॉजिटिव कमेंट्स है, 99% तो पॉजिटिव कमेंट्स है। तो एक में, उसमें एक लड़की ने लिखा था कि मेरी मम्मी और मेरी आंटीज, उनको बहुत मन करता है कि वो अच्छे कपड़े पहने, फैंसी कपड़े पहने, बट वो पहन नहीं पाती क्योंकि उनमें वो हेजिटेशन है। तो मैंने आपकी पोस्ट उनको दिखाई, मतलब आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, कि वो जो, ऐसा नहीं कि हम नहीं चाहते, मतलब मैं तो पहनती हूँ, पर जो अनफॉर्चुनेट है, जो पहन नहीं पाती, जो भी वजह है, सोसाइटी की वजह से या डर की वजह से, हेजिटेशन की वजह से नहीं पहन पाते, वो कम से कम एनकरेज होगी, वो एक, उनको एक क्या इंस्पायर होगी। तो मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे वो कमेंट पढ़ के कि उन्होंने, वो जो जिस लड़की ने लिखा, उसने अपनी मम्मी को दिखाया, आंटीज को दिखाया, और बोले ये बहुत सही आप कर रहे हो। बहुत अच्छा लगा वो पढ़ के मुझे। I think that must feel the most beautiful ना, that one person reached out and said कि जो आप कर रहे हो has been able to impact my life personally. It's so beautiful. एंड इट्स वेरी डिफरेंट व्हेन इट्स कोई एवरेज इंसान, क्योंकि उन पे तो ये इम्पैक्ट होगा, क्योंकि उनकी जिंदगी में चेंज लाना है। बड़े बड़े ब्रांड, बड़े बड़े नाम, उनका तो होता रहता है अप्स एंड डाउन्स, फैशन के हिसाब से कुछ कुछ होता रहता है, मगर जब आम आदमी पे कोई असर पड़ जाता है, दैट्स व्हेन यू रियली हैव दैट इम्पैक्ट। दैट मस्ट बी अमेजिंग। So I also want to talk about आपका जो ब्यूटी पेजेंट हुआ था, जिसमें आप फर्स्ट रनर्स अप थे, तो जब आप उसके बारे में सोचते हो, दैट मोमेंट की जब आपको फर्स्ट रनर्स अप मिला, एंड डिड यू एवर थिंक अबाउट दैट 14-15 year old गर्ल जिसने सोचा था कि मॉडल बनूंगी, और जिसको बोला गया होगा कि अच्छे घर की लड़कियां मॉडलिंग नहीं करती हैं, और यहाँ पे आप हो जिसने पैजेंट भी जीत लिया है और मॉडलिंग करने वाली है। तो आपने सोचा है कभी वो टीनेज गीता के बारे में, वो हाउ शी वुड फील अभी देख के कि आप क्या कर रहे हो? मुझे ना उस वक्त जब मेरा नाम अनाउंस हुआ, गीता फर्स्ट रनर अप, इट वाज लाइक वाओ, फाइनली मैं वो रेड कारपेट पे चल के जाऊंगी और मेरे सर पे वो क्राउन रहेगा। मतलब इट वाज लाइक अ ड्रीम कम्स ट्रू। मैं गई और वो मिकी मेहता,
इंडिया में बहुत बड़ा नाम है उनका, उन्होंने मेरे सर पे क्राउन रखा। वाओ, दैट मोमेंट वाज, अभी भी मैं वो रिप्ले करती हूँ अपने दिमाग में ना, तो वो लगता है मुझे वाओ, फाइनली आई अचीव्ड। बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और मैं गई और सपना पूरा हुआ। फैंटास्टिक मोमेंट। तो एक क्वेश्चन है इसके बारे में, क्योंकि हम आपका इंस्टाग्राम पेज भी देख रहे थे एंड देन आपके मॉडलिंग के फोटोज देख रहे थे। um, आजकल सबको डर होता है टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, अपनी खुद की फोटो डालने के लिए। हम 50 सेल्फी लेंगे और फिर 2 अपलोड करेंगे, और वो जब 2 भी अपलोड करेंगे उन 2 को 1 घंटे के लिए देखते रहेंगे कि उसमें कुछ तो फ्लॉ होगा, कुछ तो खराब होगा, कुछ तो जजमेंट मिल सकती है, स्पेशली टू पुट अप लॉन्जरी फोटोज। उसमें तो पता नहीं कितने डर लगता होगा लोगों को। ये आपका क्या थॉट है इसमें, व्हेन यू पुट अप फोटोज ऑफ योरसेल्फ? और मलाइका, सच बताऊं तो एक बार हेजिटेशन हुई थी। फर्स्ट एक हेजिटेशन हुई थी मेरे मन में, रखूं नहीं रखूं, क्योंकि मुझे मालूम था ट्रोल होता है आजकल, सेलिब्रिटीज के साथ होता है, आम इंसान के साथ भी होता है, और लॉन्जरी में आप फोटो डाल रहे हो, ट्रोल होने का था क्या होगा, ऐसा होगा। बट वो एक मोमेंट्री मेरे दिमाग में ख्याल आया, थोड़ा हेजिटेशन था, क्योंकि मेरा कैंपेन था, मुझे वो दिखाना था कि 50s के बाद भी हम लोग फैंसी लॉन्जरी पहनते हैं। मुझे एक मैसेज देना था, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई बॉडी। मुझे बिल्कुल वो डर नहीं था, डर था मुझे कि हाँ ट्रोल होगा, वो एक डर था, एक हेजिटेशन था, पर वो तो एक मोमेंट के लिए आया, वो चला गया। और मेरा जो मैसेज है, मेरा जो कैंपेन है, अगर मैंने शुरू किया है, मैं उसमें लीड नहीं करूंगी तो बाकी लोगों को वो मेरा मैसेज पहुंचेगा ही नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि आई जस्ट प्रीच एंड आई डोंट प्रैक्टिस, आई हैव टू प्रैक्टिस व्हाट आई एम प्रीचिंग। तो वो मेरे दिमाग में एक बार वो हेजिटेशन ट्रोल की वजह से आया, बट बाकी बिल्कुल मुझे वो नहीं था कि मैं क्यों नहीं रखूं। मतलब दिस इज रियल मी, आई वेयर फैंसी लॉन्जरी इन माय डेली लाइफ, और इस तरह से जो मैं रहती हूँ वही मेरी फोटो है कि मैं ऐसे ही रहती हूँ। 50s में लोग ऐसे रहते हैं, तो बस मुझे वो देना था एक मैसेज मेरे कैंपेन के साथ, मुझे वो एग्जांपल लिव करके दिखाना था, तो मैंने अपनी फोटो डाली वो लॉन्जरी की। बिल्कुल हेजिटेशन उसके बाद नहीं हुआ। Feeling very confident now. I need to post something. हाँ, मेरे को आपका लॉजिक बिल्कुल समझ आ रहा है, मगर मैं अभी भी सोच रही हूँ कि जब मैं कल फोटो डालूंगी, मैं अभी भी उसको लगभग आधे घंटे के लिए सोचूंगी कि यार डालूं कि नहीं डालूं, कि इसको ऐसे डालूं कि आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड आप क्या बोल रहे हो, मगर इट्स स्टिल अमेजिंग टू, एज यू सेड, प्रैक्टिस इट। एक बात होता है सोचना, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग टू प्रेस दैट अपलोड बटन कि हाँ ये मैं कर रही हूँ, और आपको मालूम भी कि बैकलैश तो होगा, ट्रोल्स तो होंगे, मगर उसके बाद भी करना बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू। आई थिंक इट्स नॉट, आई थिंक इंस्पिरेशन बस लेडीज इन देयर 50s के लिए नहीं है। आई थिंक इट विल बी इंस्पायरिंग फॉर वुमेन अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो 16 साल की लड़की हो या फिर 50 या 70 साल की औरत हो, फर्क उनको पड़ेगा कि अगर ये कर सकते हैं तो मेरे को कोशिश तो करनी चाहिए, सोचना तो चाहिए, कर लेंगे चलिए देखेंगे। बस वही मैं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वही हो। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो गीता, सबको आई मीन वो हेजिटेशन के साथ भी सबको थोड़ी तो मदद चाहिए होती है, या फिर किसी से बात, या कोई व्हाट्स कॉल्ड चीयरलीडर इन योर लाइफ, जिनसे आप बात करो, या फिर वो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पुश चाहिए कि आपने मन तो ठान लिया कि हाँ ये करेंगे, मगर वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। कोई दोस्त हो या समवन इन योर फैमिली, आपके लाइफ में आपके लिए चीयरलीडर कौन है? मलाइका, आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मेरे आसपास इतने सपोर्टिव लोग हैं ना, अभी किस का नाम बोलूं, बट इसे मेन जो है मैं उनका नाम लूंगी इधर। माय फैमिली, सबसे पहले मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। उसके अलावा मतलब कभी मुझे हेजिटेशन होती है, डाउट आती है, तो मैं डिस्कस करती हूँ उनके साथ, और हमेशा काफी सपोर्ट मिला है मुझे। उसके अलावा मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है दीपिका, हम लोग डिस्कस करते हैं, और कभी जैसा मूड डाउन होता है, रिगार्डिंग पेटिशन कुछ बात करनी है, तो मैं उससे ही बात करती हूँ, दीपिका, तो वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती है, समझाती है, या डिस्कस करके हम फाइनली कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं कभी कोई डाउट होता है तो। उसके अलावा मेरी शी क्रिएट चेंज, जैसे ये दिख रहा है आपको,
कप उल्टा हाँ दिख जी। रहा होगा शायद, शी नहीं, दिख क्रिएट रहा है, चेंज दिख उसमें नहीं, दिख रहा है। हाँ हाँ, तो ये हमारी एक कम्युनिटी है विमेन की, change.org का ये है, शी क्रिएट चेंज। तो हमारा एक ग्रुप है, तो जो भी कोई डाउन होता है या कभी कुछ जरूरत होती है, हम लोग वो ग्रुप में डालते हैं और डिस्कस होती है और वहां से सपोर्ट मिलता है। तो ये कम्युनिटी इट्स माय बैकबोन। उसके अलावा मेरे फ्रेंड्स सब काफी सपोर्टिव है, और मेरे मेरी लाइफ में ना जो मेल फ्रेंड्स है, मेरे मेल फ्रेंड्स वो बहुत सपोर्टिव रहे हैं। जो इंस्टाग्राम पे मिले वो लोग काफी सपोर्ट करते हैं, जो मतलब वर्चुअल फ्रेंड्स है उनसे भी मुझे काफी सपोर्ट मिला है। तो आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू हैव पीपल, सपोर्टिव पीपल अराउंड मी। which is amazing, especially आजकल की दुनिया में to hear कि आपको इतना support मिल रहा है, it's very good to know. मगर उसी के बारे में थोड़ा सा और to kind of understand a little bit. अभी 1 साल हो गया है आपका pageant होकर, आपका ये lingerie modeling करके, and this whole fight which you're doing कि ageism कुछ नहीं है, फैशन में तो होना ही नहीं चाहिए, और होना इट शुडंट बी कॉन्सेप्ट एट ऑल। तो अब एक तो है आपकी आपके दोस्त और आपके फैमिली, उनका सपोर्ट तो आया विच इज ब्रिलियंट, मगर उससे थोड़े आगे जो हमारी सोसाइटी होती है, जो आप लोग काइंड ऑफ जानते हो नहीं जानते हो, उनका फीडबैक कैसे रहा है, उनका रिस्पॉन्स कैसे रहा है बियॉन्ड योर फैमिली? हैज एवरीवन जनरली बीन ओके विद इट, या फिर लोगों ने पूछा है कि ऐसे कैसे, या फिर कोई भी सोसाइटी का क्या रिस्पॉन्स हो? जैसे मेरी पोस्ट मैंने डाली, लॉन्जरी में डाली इंस्टाग्राम पे, कैंपेन को काफी सपोर्ट मिला है। उसके अलावा अगर मैं बाहर निकली एक दायरे से, और जैसे मैंने अपनी फोटो डाली लॉन्जरी में, और जैसे मैंने डिसाइड किया कि मुझे अभी मॉडलिंग करना है, तो मैक्सिमम तो सपोर्ट मिला, पर ऐसा नहीं है कि लोगों ने नेगेटिव फीडबैक नहीं दिया है, बिन मांगे भी दिया है लोगों ने। जैसे कि अरे ये एज में ऐसा क्यों शौक चढ़ा है आपको, लॉन्जरी मॉडलिंग क्या दिखाना क्या चाहते हो आप? अरे 50s में नहीं होता ये सब, आप क्या बिल्कुल फेलियर है, कहाँ आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मॉडलिंग आपके लिए अभी नहीं है, या फिर इंडिया में ये सब नहीं चलता है। और बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, पीठ पीछे बोलना आता है, घूम घूम के धीरे धीरे कान पे आता है, मेरे पीठ पीछे भी बोला हुआ है रिलेटिव्स ने भी, अरे इसको ऐसा कैसा शौक चढ़ा है, ऐसे सब काफी काफी ऐसे कमेंट्स मिली है मुझे। डिस्करेज करने वाले बहुत लोग मिले हैं, पर मैं लकी थी कि मुझे एनकरेज करने वाले लोग ज्यादा मिले, बट ऐसा नहीं है कि नेगेटिव फीडबैक नहीं मिला, मुझे काफी मिला वो भी। और जैसे इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारी अपनी फोटोज डालती रहती हूँ, तो लॉन्जरी की फोटो को माइनस करके बाकी फोटोज पे जो लोग लाइक करते थे या कमेंट करते थे, उन्होंने वो फोटो पे कुछ नहीं किया, तो उन्होंने बिना बताए अपना ओपिनियन जता दिया उधर कि नहीं ऐसी फोटोज को हम कैसे लाइक कर सकते हैं, ये दिस इज नॉट समथिंग टू लाइक अबाउट, ऐसा उनका अप्रोच था। तो मतलब बिना बोले भी उन्होंने काफी कुछ बोल दिया, और बोलने का तो मैंने जो आपको बोला वैसे काफी बोला गया मुझे। इंटरेस्टिंग। तो आपका ये है कि एज यू सेड जितना भी डिस्करेजमेंट हुआ उससे काफी ज्यादा इनकरेजमेंट है, और जो आपको चाहिए तो फिर आप उस पे फोकस करिए, क्योंकि आपको वो चेंज तो लाना ही है। तो यू कैन मेक दैट चॉइस कि आप उन डिस्करेजमेंट के साथ चलो, या फिर आप उस इनकरेजमेंट को लेके फिर आगे बढ़ो और करो जो करना है, which is also very strong decision. Yeah. तो टॉकिंग अबाउट द इम्पैक्ट, आपने मेंशन तो किया कि एक लड़की है जिसने who commented saying कि उसने फोटोज दिखाए और पॉजिटिव फीडबैक आया, मगर उसके साथ स्पेशली आपके कैंपेन के साथ, क्योंकि जिवामे इज अ वेरी बिग ब्रांड, एंड योर कैंपेन विद एज इज नॉट अ केज व्हिच इज नाउ आउट देयर और सब देख रहे हैं, उसके साथ आपके फ्रेंड्स, और एक्चुअली फ्रेंड्स भी नहीं, इवन फॉलोअर्स, उनका क्या रिस्पॉन्स होता है? हैव दे रीच्ड आउट सेइंग कि दे बीन एबल टू मेक द सेम चेंज, वो भी ऐसा कर पा रहे टू लुक बियॉन्ड देयर एज? हैव यू गॉट रिस्पॉन्स फ्रॉम पीपल लाइक दैट? यस, हाँ। पर उसके अलावा मैं पहले ये बोलना चाहूंगी कि जीवा मैंने रिस्पॉन्ड किया है मेरी पिटीशन पे, वो शायद मैं आपको बताना पहले भूल गई। जीवा मैंने मेरी पिटीशन पे रिस्पॉन्ड किया है, बहुत जल्दी उन्होंने किया था मेरी पिटीशन पे रिस्पॉन्ड। उन्होंने बोला है कि वी आर विथ यू गीता, एग्जैक्ट वर्ड,
we are with you, Geeta, and we believe in inclusivity, and हम वही मानते हैं कि सब तरह की विमेन इंक्लूड हो हमारी ब्रांड में. वी विल वर्क ऑन इट. ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया है, बट हाँ, उसको भी काफी महीने हो गए. जैसे ही मैंने पिटिशन लॉन्च की, 1 वीक में उन्होंने रिप्लाई किया था. अभी 3 महीने हो गए, शायद कर रहे होंगे या करेंगे. आई एम वेरी होपफुल अबाउट दैट. तो फर्स्ट तो जीवा मैंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया, एनकरेजिंग. करेंगे, आई एम होपिंग दैट. उसके अलावा जो मेरे फॉलोअर्स है वो मुझे डीएम्स करके बोलते हैं कि यस यू हैव इंस्पायर्ड अस. जैसे उसमें एक है, मेरा फॉलोअर है 40s में है शायद, तो उन्होंने जिम जाना शुरू किया, उन्होंने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया, और उन्होंने मुझे मैसेज किया कि अब तक ना मेरे में आदमी था वो. मतलब मुझे लगा था खाली विमेन की प्रॉब्लम है ये शायद कि नहीं पहनती, पर ऐसा मेन में भी है. तो उन्होंने मुझे लिखा कि अब तक मैं कुछ कपड़े पहनने के लिए मुझे हेजिटेशन होती थी, क्योंकि मैं अपने 40s में हूँ और सोसाइटी क्या कहेगी, वही उनके दिमाग में भी वही था. तो अभी उन्होंने, और मुझे दिख रहा है वो चेंज, क्योंकि अभी वो अपनी जो पोस्ट डालते हैं ना पहले से अलग होती है. अभी वो अपने जिम के वर्कआउट करती हुई वीडियो डालते हैं, अलग टाइप के कपड़े पहन के, जो फैशनेबल जो ट्रेंड में है वो पहन के पोस्ट डालते हैं. तो मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने जब डीएम किया, और मैंने बोला आई कैन सी दैट चेंज इन यू. बोले आई एम सो हैप्पी कि यू आर एबल टू सी द चेंज, एंड वो आपकी वजह से है. जब उन्होंने ऐसा बोला मुझे बहुत अच्छा लगा. इसके अलावा लड़की जैसे 20s में वो भी मैसेज करती है कि हमको आप हमारा फ्यूचर सिक्योर कर रही हो, कि आगे जब हम आगे आपकी एज में पहुंचेंगे तो हमारे लिए रेडी होगा सब, हमको आपके जैसे फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो वो थैंक यू बोलती है. और उसके अलावा एक और मॉडल उसने मुझे मैसेज किया था कि अब तक मुझे बिकिनी शूट की ऑफर आई थी, बट आई वाज लिटिल स्केप्टिकल अबाउट इट कि मैं कैसे करूं बिकिनी शूट. पर अभी मुझे लगता है कि आप कर सकते हो, तो फिर मैं तो कर ही सकती हूँ. नाउ आई विल से यस टू देम. तो अच्छा लगता है ऐसे मैसेज पढ़ के, हाँ चलो कुछ चेंज आ रहा है, लोगों की सोच में आ रहा है, उनके बिहेवियर में आ रहा है, और ऐसा चलता रहेगा तो आगे आगे बहुत बड़ा चेंज दिखने को मिलेगा. और उस वक्त ऐसा होगा कि आप ऐसे किसी का इंटरव्यू इसलिए नहीं लोगे कि वो 52 इयर्स की है और कुछ कर रही है, क्योंकि उस वक्त वो नॉर्मलाइज हो गया होगा. बस वो चेंज की देर है. Geeta, you know what we love the most about you is आपका जो डायलॉग है कि सपनों की कोई एक्सपायरी नहीं होती. It feels so nice to hear it and to say it actually more than anything else, and you are living by that, right? तो हम हमारे सब पॉडकास्ट गेस्ट को यही क्वेश्चन पूछते हैं कि if there was something that we can change and that we can raise the bar in our society, वो क्या चीज होगी? तो आपके ओपिनियन में हम एज अ सोसाइटी एंड कल्चर ग्लोबली, जो इंडियंस हर जगह रह रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं अलग जो हम अभी नहीं कर रहे हैं, that will pave the path for our future, that will make us better in any way possible? अभी तो मेरी लड़ाई एजिज्म के खिलाफ ही है. मैं चाहती हूँ, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला, कि आप मत ऐसे एड्रेस करो यंग ओल्ड, एज एन इंडिविजुअल. बस वो हो जाए तो मैं अभी तो वही चाहती हूँ कि कहीं पे एजिज्म कोई फील्ड में ना रहे. मॉडलिंग की अभी मेरी लड़ाई है मॉडलिंग फील्ड में, बट नहीं, कहीं पे ये होना नहीं चाहिए एजिज्म. तो जितना हो सके सब लोग, मैं यही चाहूंगी कि वो अवेयरनेस स्प्रेड करे कि ये एजिज्म है क्या और कितना नेगेटिव इम्पैक्ट वो करता है इंडिविजुअल पे. तो बस थोड़ा लोग अवेयर हो जाए और इसके खिलाफ आवाज उठाए. फिलहाल तो यही है. काफी बड़ा आस्क है वो. एंड हमारा होप है कि 10 साल 20 साल में like you rightly said that we won't be having conversations like this as an important thing, because now it is so important, but hopefully 20 years में it's like oh ये तो normal है, and you will be at the center of it, which is what is amazing. अभी आप एडवर्टाइजमेंट देखो, आपको कौन से प्रोडक्ट में आपको मैच्योर मॉडल दिखती है? दिखेगी तो इंश्योरेंस की कोई एड होगी, उसमें दिखेगी. रोती है, हाँ चलो लाइफ इंश्योरेंस कर लो, हेल्थ इंश्योरेंस कर लो, या बैक पेन है तो मुंह लगा दो, या कोई मेडिसिन लगा दो. उसके अलावा कभी पिज्जा, हाँ
माँ का रोल होगा, सपोर्टिव रोल होगा, माँ का होगा, मदर इन लॉ का होगा, Supporting role. टीचर का होगा, कभी बिजनेस वुमन ऐसे मस्त बिजनेस सूट पहन के बैठी है, कोई बिजनेस मीटिंग को हेड कर रही है, कभी दिखाया है? कभी दिखाया क्लब में फन ले रहे? क्यों 50s के बाद Never. फन लेना बंद कर देते हैं? नहीं होता है ऐसा, ऐसे कभी नहीं दिखाया। कोल्ड ड्रिंक भी हम पीते हैं यार, 40s हो गया तो क्या हम कोल्ड ड्रिंक पिज्जा खाना बंद चाय, नहीं कर देते ओनली हैं? चाय उसके बाद। हाँ, वो भी हर्बल टी। ऐसा नहीं होता है। We don't stop having fun after 40 or 50s. क्यों नहीं दिखाते हो? वो भी herbal tea. कितने हाँ, प्रॉब्लम herbal tea, वो भी। मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में, मतलब कहाँ पे हाँ। शुरू करो? कहाँ से, मतलब ये ब्रांड है तो बहुत कुछ कर सकते हैं, आप दिखाओ ना। वर्कआउट Correct. कर रही है, और अगर कभी आप वर्कआउट करते हुए मैंने देखा है सलवार कमीज में योगा करते हुए दिखाते, उससे आगे मैंने नहीं देखा है, उससे आगे मैंने नहीं देखा है। मैं पहन के, मैं स्पोर्ट्स ब्रा पहन के और ट्रैक पैंट पहन के मैं रनिंग पे जाती हूँ, और मैं रेगुलर workout कपड़े करती हूँ। पहन रहे हो आप कुछ अलग नहीं पहन रहे हो। अलग नहीं कर रहे हो, मतलब जो यंग लोग पहनते हैं एक्टिववेयर, वो 40-50 वाले भी पहनते हैं, बट कभी ऐसे नहीं दिखाते। तो एक जो स्टीरियोटिपिकल इमेज बना दिए ना मीडिया एडवर्टाइजमेंट में, ब्रांड्स ने सबने मिलके, उसको तो पहले सुधारना है, और तभी वो लोग मुझे ऐसे क्वेश्चन करना बंद कर देंगे कि ये आप ही हो, और वाओ यू आर सो फिट एज पर योर एज। क्यों ऐसे क्वेश्चन आता है, क्यों आपके दिमाग में? आप 20s में कोई होगा उसको तो नहीं पूछोगे, आप मुझे क्यों पूछ रहे हो? Correct. तो ये कब नॉर्मलाइज होगा? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। और ब्रांड्स बस वो कदम उठाए और कहीं से तो शुरू एक हो। ब्रांड को करना है, पता है, एक ब्रांड करेगा तो मतलब, एंड एक बड़ा ब्रांड करेगा तो बस हाँ। एक इफेक्ट, एक व्हाट इज दैट इफेक्ट कॉल्ड? Domino Yeah, effect. Domino's, Domino Domino's. effect. Yes, that's what will Yeah. happen, and that's it. जीवा में के बस बिल्कुल। दे रहे, बस मुझे वही है कि जीवा में करे जो उन्होंने बोला है। Exactly. Geeta, it was amazing having you. We love your message and we love you. We've already told you that many times. And Love you too. aw, कभी किसी ने वापस नहीं बोला है, देखा? I just thought of that. ये एग्जैक्टली। ये लव भी नॉर्मलाइज करना होता है, ठीक है? क्यों नॉर्मलाइज सेइंग आई लव यू कोई बोलता ही नहीं है फाइनली। But yes, it has been amazing speaking to you and just listening to you talk. It's first of all very warming and then inspiring. थैंक यू वेरी मच। मुझे आपने बुलाया और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपने व्यूज प्रेजेंट कर सकूं, ताकि और लोगों तक ये बात पहुंचे, मेरी कैंपेन पहुंचे और लोगों को पता चले कि ये चेंज कितना जरूरी है। अभी तो जागो। अभी तो जागो। Perfect time to end. Thank you very much, Geeta, for coming on our podcast, Raise the Brow. And hope you have a wonderful week ahead. And we're going to look forward to seeing your post and your fight against Zivame. Thank you very much. Happy weekend. Thank you. Bye-bye. Thank you. Hey there! Thank you for tuning in to this week's episode of Raise the Brow. Follow the podcast on Instagram and YouTube. And hey, slide into our DMs because we would love to hear from you. Don't forget to share the podcast or this very episode with anyone who you think needs this in their life.